Hello, very good morning to all of you. Once again, I am here with you for the details about Python. Yesterday, we have learned about the Python basics, not the completely, but partially we have covered that portion. Today, again, we are introducing these concepts and we will move forward. First of all, we have to do the recapitulation of whatever we have learned yesterday. So, here we are. Yesterday we learned about the working modes in Python. Okay, what are the different working modes in Python yesterday? I told you about the two working modes. One, one is the interactive mode, another one is the script mode. And after that we have learned how to work in interactive mode and how to work in script mode. Interactive mode, I told you that it's a immediate mode. Okay, so whenever you give the question to computer and computer will answer immediately, so it's a kind of immediate mode, interactive mode. And in case of script mode, what we have done, we have written a set of instructions and given a name to it, and after that we have executed it by using a F5 key. So the whole bunch of program, whole bunch of instructions executed one by one, but in one go. That is script mode. After that, we have discussed about the various program components. I told you about the tokens. What are tokens? The small lexical unit of a program is known as token. The smallest unit, you can say the smallest unit of a program is known as token. And there may be different kind of tokens like identifiers, name, identifiers, then variables, constant, functions. These are all the part of tokens. Commonly you can call them token. Okay, and identifier is what? Identifier is the name given to any component of a program. एक फंक्शन है, फंक्शन को आप एक नाम देंगे, कुछ फंक्शन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे बाद में. फंक्शंस को एक नाम देंगे, वेरिएबल को एक नाम, वेरिएबल तो आप समझते हैं, वेरिएबल आर नेम्ड स्टोरेज लोकेशन whose contents can be changed during execution of a program. ये हमने पढ़ा है. और वेरिएबल का अगर हमने कोई नाम दिया है तो वो क्या है? आइडेंटिफायर, बिकॉज इट आइडेंटिफाई दैट वेरिएबल. आफ्टर दैट वी हैव लर्नड अबाउट what are the various naming conventions for identifier. Naming convention, like you heard that cannot put a space in between the variable name. Yesterday we have discussed one example, and then you realizes that you cannot start a name, identifier or name with a digit. ठीक है, एंड डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे, अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं. कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कोई भी लेटर हो सकता है. केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल्स जो हैं, या वेरिएबल के नेम, या यू कैन से आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव. मीन्स वट एवर यू हैव रिटन इन स्मॉल लेटर एंड वट एवर यू हैव रिटन इन कैपिटल लेटर, बोथ विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली. दोनों ही अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाएंगे. क्लियर है? तो ये तो हमारी कल की बात है. कीवर्ड के बारे में भी बताया था. कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड, मतलब these are the words which have some special meaning to the interpreter. इंटरप्रेटर कौन है? पाइथन इंटरप्रेटर के को इसकी एक स्पेशल मीनिंग असाइन की गई हो. और इफ वी शुड नॉट राइट कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, बिकॉज इफ वी डू दैट then there may be conflicting errors. Means compiler will not able to understand what you are giving, so it may produce an error because it is having a two name for the one action. So already it has reserved some words for that purpose, and if you are assigning the
another work to that variable name whatever is assigned earlier, so it may create some problem. Okay, so keywords you simply learn that keywords are special words which have some special meaning to compiler or interpreter. After that, today what we learn, okay, what we will learn today? Today we will learn about the literals, and there may be different kind of literals. We will discuss about that. After that, we will learn about the escape sequences, string type. What is string? We will discuss type conversion methods. Okay, and how to take input and output, basic input and output computer program. This is the agenda for today. So let's start. Okay, let's start today's program. Now, whatever we have discussed came here. The Python character set we have discussed. After that, we have discussed about the tokens. ये मैंने आपको दिखाया था, स्लाइड आपके सामने है. कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स. आज वो ज़्यादा हमारा बात किस पे होगा? लिटरल्स पर होगा. ओके, वर्ड्स हमने कल कर लिए थे. नेमिंग कन्वेंशंस हमने कल की थी. और कल हमने आपको ये आइडेंटिफाई करना बताया था कौन से वैलिड और कौन से इनवैलिड आइडेंटिफायर हैं. ये सारे वैलिड आइडेंटिफायर हैं. क्यों हैं ये आपको रूलिंग से देखने होंगे. और ये इनवैलिड हैं. क्यों इनवैलिड हैं एक बार बता देता हूँ. ग्रेड डैश पे डैश एप्लीकेबल नहीं है वेरिएबल में. अंडरस्कोर एप्लीकेबल हो सकता है. ठीक है, इस वाले केस में क्या है, यहाँ डिजिट से स्टार्ट हो रहा है. ये 12 लिखा है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है. 1 इज अ डिजिट. यू कैन नॉट write a identifier name with a digit. Here they have used dollar. Dollar could not be used. Only underscore can be used as a character in a variable identifier or the identifier you can. Here they have used if. What is if? If is a reserved word, so you cannot use it. It's a keyword. Roll number. It's wrong because dot has been placed here. देखिए डॉट लगाया हुआ है यहाँ पर. कर्सर मेरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद, पर यहाँ डॉट लगाया हुआ है. इसके बाद आता है रोल एनो. रोल नंबर में यहाँ देखिए यहाँ स्पेस दे दिया है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है. तो दीज आर द इनवैलिड आइडेंटिफायर. एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनरली कि व्हाट आर आइडेंटिफाई द वैलिड एंड invalid identifier. So what will you do? You will use the naming conventions and accordingly you will identify the invalid and valid identifier. Okay, so now move forward. Literals. Now come to literals. What are literals? Literals are fixed values. In simple word you can say these are the fixed values. अलग अलग तरीके के लिटरल्स होते हैं. स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमरिक लिटरल, वुलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल्स में नन आता है. और लिटरल कलेक्शंस वो बाद में बात करेंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे. उससे पहले सबसे पहले बात करें लिटरल्स होते क्या हैं. सपोज मैंने लिखा पाई इज इक्वल टू 3.14. तो 3.14 इज अ फिक्स वैल्यू, so it's a literal. And pi is what? It's a variable. Pi is a variable and the value assigned to variable is known as. Here comes the concept of R value and L value also. R value, L value क्या होती है? R value and L value concept. Wait a minute. एक्सप्रेशन के किसी एक्सप्रेशन में सपोज x इज इक्वल टू 59. दिस इज एन एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन के लेफ्ट पार्ट में जो है उसको L वैल्यू कहते हैं. एक्सप्रेशन के राइट पार्ट में जो है उसको R वैल्यू कहते हैं. ठीक है, तो R वैल्यू बेसिकली क्या होते हैं? लिटरल्स होते हैं. हालांकि कंपल्शन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है. तो R वैल्यू में लिटरल्स होते हैं और L वैल्यू में वेरिएबल के नेम हो सकते हैं या कोई कांस्टेंट का नेम हो सकता है या कोई भी आइडेंटिफायर हो सकता है. ठीक है, तो literals are the name data items that have
fixed value. Python supports several kind of literals. One is the string literal. Now we come to string literal. पहले ये बताइए literal समझ में आ गया आप लोगों के? I think so. Literal तो समझ में आ गया होगा. It's just a value, any number or any alphabet, any string or any boolean value. Means any kind of fixed value is known as literal. Very small definition is there. Now understand what is string literal. String is what? It's a string, as the name suggests. It's a chain of characters. Like my name Nitin. It's a string because it contains 5 characters: N, I, T, I, N. So there are 5 characters, and these characters are combined together to make form a string. ये कैरेक्टर्स को आपने कंबाइन कर दिया और ये एक स्ट्रिंग बन गया. तो अगली स्लाइड पर एग्जांपल देखते हैं. इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन ए डबल और सिंगल कोट्स. यस, strings are always enclosed in single quote, either in single quote or double quote. Okay, so there are some example I have given here. Like Python has been written in double quotes, it's a string. Mogambo, it's a string. सिंगल कोट्स में 1 2 3 4 5 6 लिखा है सिंगल कोट्स के अंदर, ये भी स्ट्रिंग है. आप कहेंगे ये तो नंबर जैसे हैं. यस, ये दिखने में नंबर हैं, but these values cannot participate in mathematical operation till the time that will not be converted into, until the time that these are not converted into integer. और कन्वर्जन क्या होता है अभी बाद में बताएंगे. फिर एक एग्जांपल से ये समझ लेते हैं, अभी समझाएंगे कि स्ट्रिंग में कैसे काम करना है. देखिए, हेलो हाउ आर यू, ये भी एक स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स में लिखा है, और यहाँ पर $4 @ अब देखिए यहाँ ये भी स्ट्रिंग ही है, सिंगल कैरेक्टर है बस, तो इसलिए कैरेक्टर कह सकते हैं. ये भी स्ट्रिंग है. इन पाइथन बोथ सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर्स इनक्लोज इन कोड सच एज केवी और एस्ट्रिक और प्लस आर ट्रीटेड एज सेम. मतलब ये सभी जो हैं स्ट्रिंग कहलाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल से देखें. चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं, डेस्कटॉप पर देखते हैं. हम इसको पाइथन में करके दिखाते हैं. अब आप देखिए कैसे करेंगे इसको. ये सपोज मुझे कोई स्ट्रिंग टाइप करना है, तो मैंने लिखा x = डबल कोट्स में केंद्रीय. एक्सेप्टेबल है, कोई एरर तो नहीं आई. या प्रिंट कराते हैं x को प्रिंट करा दें, तो केंद्रीय आ गया. आप देखिए केंद्रीय कंप्यूटर ने भी अपनी तरफ से किस में लिख के दिया है, कोट्स में लिखा है. अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ x जानने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, क्लास str, स्ट्रिंग क्लास आ गया. यहाँ जो बताया गया ना, ये बताया कि ये स्ट्रिंग टाइप का है. किसने बताया, कंप्यूटर ने. किसकी हेल्प से बताया, एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है जिसका नाम है टाइप. तो हम किसी भी वेरिएबल का अगर टाइप पता करना चाहें तो हम टाइप से पता कर सकते हैं. ठीक है. अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था. मैंने लिखा y = 1 2 3. अब इस पर एंटर करते हैं. ये स्ट्रिंग है या न्यूमरिक है, क्या होगा बताओ. चलिए अच्छा ट्राई करते हैं. टाइप ऑफ y क्या आएगा, एंटिसिपेट करो क्या आएगा. ठीक है, नहीं str, हाँ str ही आएगा. ये देखिए, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है. अब देखिए अगर मैं यहाँ पर z = 1 2 3 करता हूँ, अब बताओ क्या आएगा. अगर मैं सिर्फ 1 2 3 लिखा है मैंने, अगर मैं टाइप ऑफ z करूँ, अब बताओ क्या, ऑफ कोर्स, तो इट्स इंटीजर टाइप. So there is a huge difference between 1 2 3 and 1 2 3.
इन दोनों के बीच में अंतर है, एक स्ट्रिंग है, दूसरा न्यूमरिक है। स्ट्रिंग कौन सा वाला है? जो डबल कोट्स में लिखा है, और जो ऐसे प्लेन लिखा हुआ है वो क्या है? वो इंटीजर है। एक और चीज देखिए, इसी मोमेंट पर देखेंगे तो समझ आएगा। 1 2 3 प्लस 4 क्या होगा? अच्छा चलिए, फिर 4 नहीं, ऐसे करते हैं, 1 2 3 प्लस 4 क्या आएगा बताइए? 1 2 3 4, मतलब यहाँ समेशन नहीं हुआ, यहाँ वैल्यू सम नहीं हो रही है। जबकि 1 2 3 प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा? 127 आया। यहाँ एडिशन हुआ वैल्यू का, जब इंटीजर था तो वैल्यू का क्या हो गया? एडिशन हुआ। लेकिन जब वो स्ट्रिंग टाइप का था तो क्या हुआ वो? तब इसको कंकैटिनेशन कहते हैं। ये जो अभी आपने यहाँ देखा, इस स्क्रीन पर आपने जो देखा, 1 2 3 डबल कोट्स में प्लस 4 डबल कोट्स में, मीन्स स्ट्रिंग के साथ अगर प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो प्रोसेस कंकैटिनेशन कहलाती है। मतलब दोनों को ज्वाइन करना, दोनों स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाएंगे। और अगर दोनों न्यूमरिक हैं तो ये प्रोसेस एडिशन कहलाती है। तो आप ध्यान दीजिए, प्लस ऑपरेटर दो रोल प्ले कर रहा है। एक, जब वो स्ट्रिंग के साथ यूज होगा तो कंकैटिनेशन करता है, और जब वो वर्स के साथ यूज होगा तो फिर वो एडिशन करता है। अच्छा, एक और सिचुएशन लेके चलते हैं। 1 2 3 प्लस डबल कोट्स में 4, अब क्या होगा? करिए, एंटिसिपेट करिए, सोचिए इसके बारे में। देखिए, एक इंटीजर टाइप का है, दूसरा कैसे टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। इस केस में क्या होना चाहिए? एरर आएगी ऑफ कोर्स। इंटीजर और स्ट्रिंग कैन नॉट बी कंबाइंड। होना क्या चाहिए? यहाँ कोई कन्वर्जन होना चाहिए। कन्वर्जन की बात हमारी स्लाइड में बाद में है। तो यहाँ तक का तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम वापस चलते हैं, अपनी स्लाइड्स पर, और अब हम आ गए अपनी स्लाइड्स पर। चलिए, तो यहाँ तक का कंटेंट आपकी समझ में आ गया है कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, और तो स्ट्रिंग लिटरल्स को कैसे दिया जाता है। स्ट्रिंग लिटरल्स वेरी क्लियर, द थिंग whatever you write in single quote, either in single quotes or in double quotes, is known as string. स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होता है वो भी इसी मूवमेंट पर हमें समझ में आ गया कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करना प्लस ऑपरेटर की हेल्प से इस कंकैटिनेशन। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट डेटा टाइप को आप ना ऐड कर सकते हैं और ना ही कंकैटिनेट कर सकते हैं। मतलब इंटीजर प्लस स्ट्रिंग को आप ऐड और कंकैटिनेट नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जब उनमें को कन्वर्ट कर दिया जाए, चाहे तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया जाए या नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। वो कैसे होता है उसकी बात अभी आगे करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब आती है बात नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स की। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो कि ना वाइट स्पेस कैरेक्टर्स भी कहते हैं, वाइट स्पेस कैरेक्टर्स कह सकते हैं, जैसे स्केप कैरेक्टर्स भी कहते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आप जो है कीबोर्ड से नहीं दे पा रहे हैं। कंप्यूटर जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो कीबोर्ड इनपुट कई बार नहीं दे पाएंगे। जैसे हमें नई लाइन में जाना हो, हम वैसे तो जनरली क्या करते हैं? एंटर की प्रेस करते हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम के अंदर हमें ये बताना है कंप्यूटर को कि नेक्स्ट लाइन में जाओ, तो कैसे बताएंगे? देयर मस्ट बी सम कैरेक्टर। उसके लिए ही इसी तरीके की चीज़ों, या फिर मान लीजिए हमें एक टैब स्पेस आगे जाना है। टैब स्पेस कितने होते हैं? 1 टैब स्पेस इक्वल टू 5 स्पेस। एक टैब स्पेस में 5 कैरेक्टर्स ब्लैंक स्पेस होते हैं। जनरली तो आप टैब स्पेस बार से आगे बढ़ते हो, लेकिन अगर आपको 4-5 स्पेस एक साथ आगे जाना है तो आप टैब का प्रयोग भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस, एस्केप कैरेक्टर्स बोलता है दे आर द स्पेशल कैरेक्टर्स which cannot be typed directly from keyboard like backspace, tabs, enter, etc. When the characters are typed, they perform some action
दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई एस्केप कैरेक्टर। बैक स्लैश का इस्तेमाल होगा इसके साथ। एस्केप कैरेक्टर्स आर ऑलवेज बिगिन विद बैक स्लैश कैरेक्टर्स। इनकी डिटेलिंग करते हैं। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर जो कि मतलब हमें ग्राफिकली नहीं दिखाई दे रहे लेकिन उसको प्रेस करने पर उसको रिप्रेजेंट करता है। न्यू लाइन में मूव करना, टैब स्पेस देना, मतलब ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो दीज आर नॉन ग्राफिक। अब कौन कौन से होते हैं, एक लिस्ट दी हुई है यहाँ पर, होते तो और भी हैं, कि हम फिलहाल इतनों के बारे में जानते हैं, हमें इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो हम कर रहे हैं हम। एक है स्लैश एन। स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, जो अभी मैंने थोड़ी कहा कि नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो आप क्या लगा सकते हैं, स्लैश एन। और स्लैश टी क्या करता है, हॉरिजॉन्टल टैब, मतलब तो स्ट्रिंग लिटरल्स हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया स्ट्रिंग लिटरल्स। डबल कोट्स में और सिंगल कोट्स में अगर हम देखते हैं तो वो स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाते हैं। नॉन ग्राफिक और कैरेक्टर्स और स्केप सीक्वेंसेस की बात करते हैं। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स वो होते हैं जो हमें ग्राफिकली अपीयर नहीं होते, जैसे ए लिखेंगे तो वो दिखाई देगा, लेकिन एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या वो दिखाई देगी, ग्राफिकली नहीं दिखाई देगी, हाँ उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। इम्पैक्ट ये होगा कि हम नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। या टैब की प्रेस करते हैं तो क्या टैब की का सिंबल दिखाई देता है, लेकिन हाँ उसका इम्पैक्ट नजर आता है कि वो 5 स्पेस आगे चला, 1 टैब इक्वल टू 5 स्पेस। These are the non-graphic characters, special characters which cannot be typed directly, like backspace, tab, enter. These are all non-graphic characters. These are also escape sequence. अब हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में मान लीजिए कहीं हमें ये मेंशन करना है कि न्यू लाइन में पहुंच जाइए, कैसे करेंगे, उस समय हम एंटर की कैसे प्रेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, उन्हें हम when the characters are typed they perform some actions. These are represented by special characters and these characters are known as escape sequence. बैक स्लैश से यूज करेंगे, आगे एग्जांपल में पता चलेगा। यहाँ देखिए बैक स्लैश, ये बैक स्लैश प्रिंट करता है, ये आपका सिंगल कोट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ दो कैरेक्टर देखने में है लेकिन सिंगल कैरेक्टर काउंट है। लेंथ की बात आएगी, स्ट्रिंग पर लेंथ कैलकुलेट बात आएगी, तो ये सिंगल कैरेक्टर की ध्यान रखना है। इसी तरीके से स्लैश डबल कोट्स स्टार्ट, ये डबल कोट्स को रिप्रेजेंट करता है। स्लैश ए स्काई वेल, एस सी आई आई वेल करता है, हल्की साउंड आती है। और स्लैश बी जो है बैक स्पेस को, स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर को, स्लैश आर कैरेज रिटर्न को, बाकी आप पढ़ेंगे। स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब को, स्लैश यू जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और स्लैश कैपिटल यू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पर 16 बिट और 32 बिट, ये हमारे ओएस के आर्किटेक्चर पर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें, कितने बिट का हमारा ओएस है। 8 बिट मतलब 16 बिट मीन्स 2 वर्ड्स एंड 2 बाइट, तरीके से हेक्साडेसिमल 4 बाइट 32 का मतलब है। स्लैश बी वर्टिकल टैब को रिप्रेजेंट करता है और स्लैश ओ ऑक्टल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स। आपको दो तरीके के स्ट्रिंग्स मैंने बताए हैं, क्या अब हम बात करते हैं इसके बारे में। दो तरीके के स्ट्रिंग हैं, एक तो जो सिंगल लाइन में लिखे जाएं और एक जो मल्टीपल लाइन में लिखे। ऐसा तो है नहीं कि हर बार हमें सिंगल लाइन में ही स्ट्रिंग लिखने की, हमें हो सकता है हमें अपना एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस हम कैसे लिखते हैं, एड्रेस लिखने के लिए सबसे पहले आप हाउस नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रीट नंबर लिखते हैं या स्ट्रीट की डिटेल लिखते हैं, और फिर उसके बाद जो है आप फाइनली लोकेशन मतलब दिल्ली या जनकपुरी दिल्ली या कुछ भी इस तरीके का। तो यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, मल्टीपल लाइन में जाता है एड्रेस, ठीक है। नेम ऑफ केवी है या नेम आपका है तो वो तो सिंपल लाइन में हो सकता है, 1 लाइन और हो सकता है,
यहाँ दो तरीके के स्ट्रिंग्स हो गए, एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग और दूसरे मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग डबल कोट या सिंगल कोट से स्टार्ट होगा और डबल कोट या सिंगल कोट पर ही क्लोज होगा। यस, आपको क्लोजिंग भी करनी है। अगर आपने मान लीजिए क्लोजिंग नहीं की तो व्हाट विल हैपन, विल गेट एन एरर में। कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो भी हमारा पाइथन तो इंटरप्रेटर है, तो समझ नहीं पाता है कि हमारा एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर आया या नहीं। एंड ऑफ लाइन मार्कर क्या होते हैं कि ये बताते हैं कि यहाँ पर लाइन फिनिश हो रही। इंटरप्रेटर कैसे जानेगा कि ऐसा हो रहा है? उसके लिए एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर मार्क किया जाता है, और वो कैसे होता है, डबल कोट को क्लोज कर। ठीक है, तो जब हम ये लिखते हैं, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ देखिए, नेम इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट केवी, केवी लिखा और कोट्स क्लोज नहीं किया, एंटर करेंगे तो क्या होगा, आपको ये एरर आएगी, ई ओ एल वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लेटर। तो एल क्या है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर या मार्कर नॉट फाउंड। This reason is quite clear. Python by default create single line string with both single quotes और double quotes। ठीक है, सिंगल कोट्स हो या डबल कोट्स हो, दोनों ही जैसे ये बात पहले भी कह चुका हूँ, सिंगल कोट्स में लिखी या डबल कोट्स में लिखी, पाइथन उसको सिंगल लाइन स्ट्रिंग ट्रीट करती है। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। Sometimes we need to store some text across multiple line। अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपको एड्रेस लिखना, तो आपको उस केस में क्या होगा, मल्टीपल लाइन में लिखना है। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के दो तरीके, पहला आप बैकस्लैश का इस्तेमाल करें, डबल कोट्स और सिंगल कोट, बाई एडिंग ए बैकस्लैश एट द एंड ऑफ नॉर्मल सिंगल और डबल कोट स्ट्रिंग। जैसे यहाँ लिखा है नेम इज इक्वल टू 1/6 मॉल रोड स्लैश कानपुर, ये भी एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, स्लैश लगाकर इन्होंने मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाया। ठीक है, अब नेम प्रिंट करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इस केस में ये एक तरीका है, दूसरा एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है कि वो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें अलग अलग लाइन में लिख पा रहे हैं। यहाँ ट्रिपल कोट्स लगाया, by typing the text in triple quotes rather than using slashes, they have used triple quotes। 1/7 प्रीत बिहार, फिर एंटर न्यू दिल्ली, फिर एंटर इंडिया, ट्रिपल कोट्स क्लोज। ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ये भी एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, बट इसको लिखने का तरीका स्लैश लगाकर है, तो ट्रिपल कोट्स में लिखकर है। प्रिंट करेंगे तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ये आएगा एक्चुअली। एड्रेस प्रिंट करेंगे तो ऐसे आएगा, प्लेन एड्रेस करेंगे, और अगर प्रिंट एड्रेस करेंगे तो प्रिंटिंग ऐसे होगी, और नॉर्मल एड्रेस की वैल्यू, यही वैल्यू तो वहाँ थी। ठीक है, अब एक दोनों में डिफरेंस भी आता है। क्या डिफरेंस आता है वो भी बताते हैं। लेंथ का डिफरेंस आएगा। चलिए, अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये दो ट्रायल कर लेते हैं। चलें पाइथन पर चलते हैं वापस, ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि कैसे वर्क कर रहा है ये। तो हमने आपको पाइथन दिखाए हैं और आ जाते हैं। x इज इक्वल टू, पहले हम पहला वाला मेथड अडॉप्ट करें। x इज इक्वल टू नितिन स्लैश कुमार स्लैश अभिराज। अब x को प्रिंट करें, प्रिंट x। प्रॉब्लम है, मल्टी लाइन वाला देखें, कुमार अभिराज हमने एक्स को प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, और अगर हमें प्रिंट एक्स करेंगे तो ये नितिन कुमार अग्रवाल एक बाद एक आएगा, जैसे हम चाहते थे।
प्रिंटिंग करने पर इस तरीके से आएगा, और सिर्फ एक्स वेरिएबल को प्रिंट करने पर उसके अंदर क्या वैल्यू है वो बताएगा। कोट्स में उसने लगाया नितिन कुमार अविरल। अगर हमें मल्टी लाइन कोट्स इस तरीके से लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, y इज इक्वल टू, लाइन में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे A38, ठीक है, गणेश गणेश नगर नगर प्लस एन दिल्ली 90। और ये अब मैं बाइक को प्रिंट करूँ, क्या आया, प्रिंट है। आपने देख लिया दोनों मेथड। दोनों मेथड देखने के बाद अब हम वापस चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, इसी मोमेंट पर हमें अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ एक्स 18 आई है और लेंथ ऑफ वाई सही है। कैसे, एक्स में क्या लिखा है हमने, एक्स में हमने नितिन कुमार अविरल लिखा है। जरा देख लेते हैं इनमें कितने कैरेक्टर हैं, 5। कुमार में भी 5, अविरल में 16 ही हो गए। एक स्लैश एन का 17 और एक ये वाले स्लैश एन का 18, तो 18 ठीक है। अब आ जाइए y इज इक्वल टू, वाई में क्या हुआ है, 1 2 3 4 और एक 5, अच्छा 7 8 9 10 11 12, क्या ब्लैंक, 14 15 16 17 18 19 22 24 25 26 27 28 29 30 कैरेक्टर्स आपकी इसमें। कोई डाउट, इस वाले एक बार एक्स और करते हैं, पर एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 नितिन कुमार अविरल, आएगा फिर मैंने लिखा एक्स इक्वल टू, अब देखिए अंतर देखिएगा आप, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इन कुमार अविरल 1 2 3